سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا پھول بچھائی پیاسے، جھولو شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اور واہ مدیحوں کا جگر خوف سے پانی پایا، واہ مدیحوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ اور فرماتے ہیں کہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور آخر میں آ کر کے کہتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حج کے تعلق سے کچھ گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کے اس خطبے میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو سرمد سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس کا یہ تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ کی تعظیم کرنا یہ بدرجہ اولا دلوں کا تقوی ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ بھی دلوں کا تقوی اور طہارت ہے۔ اللہ جس کو ماننے کا حکم دے گا اس تمام کو مانا جائے گا۔ اللہ کی تعظیم ضروری ہے، لیکن اللہ جسے عزت عطا کرے اس کی بھی تعظیم کی جائے گی۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اس کا یہ تعظیم کرنا دلوں کا تقوی۔ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال یہ فرض ہو جاتا۔ حالانکہ کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہر سال تم حج کرو۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احکام شرعیہ میں اختیار کلی رکھتے ہیں، شریعت کے تمام احکام میں حضور کو پورا اختیار ہے۔ اب یہیں سے گفتگو ہم مزید عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی تمام تر عشق اور محبت کی توانائیوں کو سمیٹ کر جی لگا کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس جمعہ میں آپ نے حضرت ابن عباس کی مروی حدیث سماعت کی تھی، آج آپ حضرت ابن مسعود سے مروی حدیث سماعت کریں گے۔ دونوں پائے کے یہ مفسرین میں سے ہیں اور ان کی روایتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما، کہ حج اور عمرہ کو یکے بعد دیگرے ادا کرو، حج اور عمرہ کو یکے بعد دیگرے ادا کرو، یعنی قران کا احرام باندھو یا بالفعل
दोनों को मुत्तसिलन करो। अब जो हज करके आए हैं, हाजी लोग हैं, वो जानते हैं कि क़िरान क्या है, हज क्या है, उम्रा क्या है। उम्रा करने वाले सिर्फ हज या उम्रा ही के ताल्लुक से मोटा मोटी सारे नहीं, जो आम मोतमिर हैं वो जानते हैं, लेकिन क़िरान ये उम्रे ही की तरह वहां भी तवाफ वगैरह अरकान अदा किए जाते हैं। ये हाजियों को बिलखुसूस इस हवाले से इल्म होता है। तो वहां पर दोनों का हज और उम्रा दोनों को पे दर पे एक के बाद दिगरे अदा करें, या फिर दोनों का इहराम एक साथ ही बांध करके अदा कर लें, यानी उम्रा और क़िरान। अब आगे फरमाते कि इसलिए कि ये दोनों इफलास और गुनाहों को दूर करता है। इफलास तंगी, तंगदस्ती, बदहाली, खस्ता हाली और गुनाहों को ये दोनों दूर कर देते हैं। जिस तरह भट्टी लोहे, चांदी और सोने की मैल को दूर कर देती है, और हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। अभी इनके ज़िम्न में जो मसाइल फ़िक़हिया में वो अर्ज करूंगा, पहले एक दो हदीसें और सुन लें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरजा हाजन औ मुअतमिरन औ गाज़ियन सुम्मा माता फी तरीक़िही कतबल्लाहु लहू अजरल गाज़ी वल हाजी वल मुअतमिर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज या उमरा या जिहाद के इरादे से निकला, फिर रास्ते ही में मर गया तो अल्लाह ताला उसके हक में हमेशा के लिए मुजाहिद, हाजी और उम्रा करने वालों का सवाब लिख देता है, हमेशा के लिए। तो इस मुबारक सफर पे जो हाजी वापस नहीं आएंगे उनका बड़ा नसीबा है। हमेशा वो हाजियों के बराबर सवाब उन्हें मिलता रहेगा दायमी तौर पर। फिर हजरत इब्न अब्बास से मरवी हदीस ये भी आप फरमाते हैं, मैं मतन छोड़ करके सिर्फ तर्जमा पर इत्तेफा करता हूं। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में उमरा करना हज के बराबर है। अगली हदीस हजरत अबू ज़रीन उकैली से मरवी है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए एक बंदा आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अब्बा बूढ़ा हो गया है, मेरा बाप बूढ़ा है, शेख है, शेखुन कबीर, बहुत बूढ़ा बाप हो गया मेरा, और बहुत कमजोर भी है, हज और उम्रा की ताकत नहीं रखता, और ना सवारी पर सफर करने की उसमें कुव्वत है। आपने फरमाया तो अपने बाप की तरफ से हज और उम्रा कर, अपने बाप की तरफ से हज और उम्रा कर। फिर अगली हदीस सुन ले, ये बड़ी अहम है, मैं इस पर चंद मसाइल जरूर रखूंगा। हजरत इब्न अब्बास ये भी मरवी है, आप फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी बहन ने हज की नजर मानी, मेरी बहन वो हज की नजर मानी और नजर पूरी करने से पहले ही वो दुनिया से रुखसत हो गई, मर गई। आपने फरमाया अगर उस पर कर्ज होता तो क्या उसको अदा करता? उस बंदे ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, अगर वो मकरूज होती, उस पर कर्ज होता तो मैं जरूर अदा करता उसे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाए ताला का कर्ज भी अदा कर कि उसका अदा करना ज्यादा जरूरी है। अब इन दोनों हदीसों को पेशे नजर रखें आप। पैसे हैं आपके पास, दौलत है आपके पास, पहले नहीं थी अब हो गई है, आसाइश है, अब्बा पे हज फर्ज है, अब्बा पे हज फर्ज हो चुका है, और लेकिन अब वो कमजोर है,
नातवा हैं, ताकत नहीं है कि वो सफर पे जा सके, तो या तो आप खुद हज का फरीजा अदा करने के लिए अब्बा की तरफ से जाएं, या फिर आप किसी को भेजें जो आपके वालिद की तरफ से हज अदा करे और हज के तमाम अरकान को अदा करे, जिसे हम अपनी जबान में हज बदल कहते हैं। तो ये जरूरी है। और अगर किसी ने नजर माना, देखें यहां पर एक ये हदीस जो लाई गई बहन के ताल्लुक से, आप आजकल हमारा और आपका मिजाज क्या है कि हम अपनी बहनों को तो चाहते हैं, लेकिन शादी करने के बाद उससे पूरी तरह से छुटकारा पा जाते हैं। बहनों की शादियां हो गई तो भाई बिल्कुल बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। जब तक अब्बा अम्मा होते हैं वो अपनी बच्चियों का ख्याल रखते हैं, तो बच्चियां लड़कियां जब आती जाती रहती तो बहन और भाई का थोड़ा लगाव बना रहता है। लेकिन जैसे ही अब्बा या अम्मा रुखसत हुए, दोनों छुट्टी लिए अपनी, तो बहन बेगाना हो जाती है। क्या मतलब रह गया? लेकिन ये इस्लाम जो जहन दे रहा है, जो जहन साजी की जा रही है, जो तरीका बताया जा रहा है, आए जनाब अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरी बहन थी, उसने नजर मार रखा था कि वो हज करेगी, लेकिन नजर पूरी करने से पहले ही वो दुनिया से रुखसत हो गई। मदीने के ताजदार, उम्मत के गमखार, हमारे आका मावा मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन, अगर तेरी बहन कर्ज लिया होता, वो मकरूज होती तो तू क्या करता? उसने अपने जज्बे का इजहार किया, या रसूलुल्लाह अगर मेरी बहन मकरूज होती तो मैं उसके कर्जे को अदा करता, मेरी बहन थी इसलिए मैं उसके कर्जे को अदा करता। आका ने फरमाया, तो सुन, तेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि उस अल्लाह के कर्ज को अदा करे। और आज अल्लाह का कर्ज तो बड़ी बात है, दुनिया ही का कर्ज भाई नहीं अदा करता। दुनिया का कर्ज तो छोड़ो, अल्लाह का भी कर्ज, बड़े मामलात बिगड़े हुए हैं। हमारे तखय्युलात में बड़ा तजाद आ गया है, हमारी सोचे, हमारी फिक्रें बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं। मजीद मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत बगैर मुहरिम के हरगिज सफर ना करे, औरत बगैर मुहरिम के हरगिज सफर ना करे। और मैंने बारहा देखा, मुशाहिदा किया है कि आजकल तो चूंकि पैसों की थोड़ा सी कुशादगी आसाइश हो ही चुकी है, तो औरतें दनादन उम्रा पे जा रही हैं बगैर मुहरिम के। अच्छा, ये जाए क्यों ना? जाए क्यों ना? एक फसाद तो और भी है, वो जो गली गली जाते हैं दीन सिखाने के लिए ना, नापाक है तब भी खींच के लाएंगे मस्जिद, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, नमाज पढ़ो हो जाएगा, बस यहाँ टखने से धुल लो, यहाँ कमर से धुल लो, हो गए पास। गुस्ल फर्ज है, वाजिब है, तब भी खींच के लाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से धुल लो, हो जाएगा हो जाएगा। इन लोगों ने इतना खराबी पैदा किया कि आजकल इनके दारुल इफ्ता से अगर आप सवाल पूछ लेना तो जवाब आपको यही मिलेगा कि बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन यह हदीस है मुतलक, और हमारे फुकाहा ने जो इस पर इस्तेमाल किया है वो अपनी जगह पर मुसल्लम है। औरतें बगैर मुहरिम के हरगिज हज चाहे उन पर फर्ज ही हो गया हो, हज फर्ज हो गया है, लेकिन फिर भी उनके लिए यह गुंजाइश और रुखसती है, अगर उनका अपना मुहरिम नहीं है तो हरगिज ना जाए, और ना जाएंगे तो उन्हें सवाब गुनाह नहीं होगा। हज फर्ज हो गया है लेकिन मुहरिम नहीं है तो वो हज पे ना जाए, गुनाह नहीं होगा। लेकिन मर्दों पर हज फर्ज हो गया है, हज पे ना जाए तो इन्हें गुनाह होगा, इन्हें गुनाह होगा। और अगर उस पर खवातीन पर, औरत पे हज फर्ज हो गया और मुहरिम नहीं है और हज पे जा रही है, तो हमारे उलमा फक़ाह फरमाते हैं हज का उसे सवाब तो मिलेगा, लेकिन हर कदम पे गुनाह भी मिलेगा। हज का सवाब तो मिलेगा लेकिन हर कदम पर गुनाह भी मिलेगा। अब आप सोचे, और आजकल तो मिजाज एक ट्रेंड बन गया है, मिजाज बन गया, दानादान उम्रे पे निकल रही है, माँ बेटी साथ में निकल रही है, कोई मुहरिम नहीं, जवान बेटी जवान माँ भी दानादान बगैर मुहरिम के जा रही है, वहां शोहर उनका कमा रहा, वहां मिल जाएगा, जहां से निकल पड़ी। खैर, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बगैर मुहरिम के हरगिज सफर ना करे, चाहे वो हज ही का सफर क्यों ना हो, चाहे वो हज ही का सफर क्यों ना हो। अब इसी के जिम्मे में मैं चंद मसाइल फिक़हिया अर्ज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 ही मिनट 1 मिनट बचे हैं, तो मैं 1-2 हदीस और पेश करना चाहूंगा। दुरूद पाक का नजराना पेश किया। मोहम्मद सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ पे ये जिक्र करना जरूरी था कि मुहरिम और गैर मुहरिम
किन किन को शुमार किया गया है, आइंदा जुम्मा में इंशाअल्लाह मैं उस बात पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। आजकल एक मैसेज और भी बड़ा गर्दिश कर रहा है कि एक साहब है मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर के कह रहे हैं कि आप यहाँ मदीना आए ना तो और किसी गरज से ना आए, बल्कि ये नियत के साथ आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में मुझे नमाज पढ़ना है। क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से अपना ताल्लुक रखते हैं जो गली फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वो गली गली फिरने वाले लोग अहम जगह पे खड़े होकर के ये मैसेज और ये तालीम उम्मत को दे रहे हैं। गलत ज़हनसाजी की जा रही है कि मदीना आप आए तो सिर्फ इसी नियत से आए कि रसूलुल्लाह की मस्जिद में नमाज पढ़ना है। मैं हदीस की रोशनी में वो अहबाब जिन्होंने मैसेज किया उन्हें भी जवाब दे दूं और आप भी समाअत करें कि हम मदीना क्यों जाएं, हम मदीना क्यों जाएं, फकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, या फिर कुछ और नियत होनी चाहिए। और वो जो नियत हम करके जाएं वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही नियत है या आज जो लोग बता रहे हैं इनकी बातें सही हैं। तो सबसे पहले हजरत इब्ने उमर से ये मरवी हदीस कहते हैं अन इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। ये हदीस आपको तकरीबन याद होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये हदीस मरवी, वो कहते हैं कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी कब्र की जियारत करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। ये भी हजरत इब्ने उमर से मरवी हदीस कहते हैं, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी जियारत के लिए आया सवाए मेरी जियारत के और किसी हाजत के लिए ना आया तो मुझ पर हक है कि कयामत के दिन उसकी शफाअत करूं, उसका शफी बनूं। और ये भी हदीस हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हज किया और मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की जियारत की तो ऐसा है जैसे मेरी हयात दुनियावी में मेरी जियारत को आया। अब ये आप बताएं, हज के लिए जाए, हज करे, हज मक्के में है, मुज़दलिफा अरफात मिना सब मक्के में है, और जिस घर का तवाफ करना है आपको और उस तवाफ के बाद आप एहराम से पाक होते हैं वो घर भी मक्के ही में है, अल्लाह का वो गुरगजीदा घर। हज के तमाम अरकान मक्के में है। अच्छा, हज में कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसके जो खास तौर से हज की नमाज होती हो। हमारे कुछ जाते हैं और कुछ और भी लोग हैं जो हम लोगों की गुफ्तगू सुन करके कहते हैं मौलाना आप लोग कहते हैं कि इनके पीछे नमाज ना पढ़ो, उनके पीछे नमाज पढ़ो। हज के लिए जाते हैं वहां नमाज पढ़ते नहीं उनके पीछे, और नमाज उनके पीछे नहीं पढ़ेंगे तो हज कैसे होगा। अब उन्हें यही नहीं खबर होती कि हज के लिए कोई नमाज नहीं है, हज के अपने अरकान है जिसमें किसी इमाम की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद अदा करना है, वो खुद अदा करना है। हज की कोई नमाज नहीं है, हज का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें आपको किसी इमाम की तरफ रुजू करना पड़े और उसकी इब्तिदा में खड़े होकर के वो अरकान आपको पूरा करना पड़े। तो ये गलत तस्वुर और गलत ज़हनसाजी की जाती है। खैर, अर्ज ये करना कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज किया और मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की जियारत की तो ऐसा है जैसे मेरी हयात दुनियावी में जियारत से मुशर्रफ हुआ। अब ये हदीस दारिक़ुतनी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी और इसे तबरानी ने भी बयान किया है। हुजूर कहें कि मेरी जियारत के लिए आए और आज ये समझाया जा रहा है कि नहीं, बस रसूलुल्लाह की मस्जिद में नमाज पढ़ने के इरादे से आओ। अंबियाए किराम के हयात के ये मुनकिर है, इसलिए तमाम तरह के सोचे डाले जाते हैं। आज जरूरत है कि आप दीन की तालीमात सही तरीके से पढ़ें। इंटरनेट का दौर है, जमाना है, हर फिरका हर मजहब की बातें सब आसानी के साथ हर जबान में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। आप क्या चाहते हैं, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, क्या अपनाना चाहते हैं। और जरूरी नहीं कि हर बंदा मसाइल को समझने वाला हो, किसी की तरफ रुजू किए बगैर। तो जरूरी ये होता है कि आप अपने अकरबा जो उलमा हैं, करीब में जो आपके उलमा अइम्मा मिले, उन मसाइल में आप उनसे सवाल जवाब करें। आप अपने हद पे रह करके सवाल करें, वो अपने हद में रह करके जवाब दें।
और तब तक सवाल करते रहे, तब तक पूछते रहे जब तक आप मुतमईन ना हो जाए। अगर जहनों में किसी और की बातें बैठी हो तो उन बातों को भी रखा जाए और उसका जवाब लिया जाए, और जवाब सिर्फ लफ्ज़ी ना लिया जाए, दलीलें मान करके कि कुरान आप पढ़ के सुनाए, कुरान पढ़े और उसका तर्जमा पढ़ के हमारी जबान में हमें समझाए, हदीस पढ़े उसका तर्जमा करे हमें हमारी जबान में समझ आए, ताकि हम सही मसला समझ सके और अपनी इस फानी जिंदगी को बेहतर बना करके गुजार सके। बस इन बातों पर आइंदा जुमा में मैं हज के ताल्लुक से कुछ मसाइल रखूंगा और अंबिया इकराम की हयात के ताल्लुक से कि अंबिया जिंदा है या नहीं जिंदा, ये कह करके बात को खत्म कर दे। कि किसी ने कहा था कि बगैर हुब्बे नबी जो हो काबे का तवाफ, बगैर हुब्बे नबी जो हो काबे का तवाफ वो हज नहीं नसीब के चक्कर की बात है, वो हज नहीं नसीब के चक्कर की बात है। जो हज पे जाने का इरादा रखते हैं जो जाएंगे, हाँ जो हज पे जाने का इरादा रखे मालदार है, पैसा वाला है, ताकत वाला है, इरादा करे तो उसे चाहिए कि जल्दी से जल्दी हज अदा करे। हाँ जो माले हराम समेट के रखने वाले हैं, माले हराम समेट के रखने वाले हैं और जो दिखावा के लिए हज करने वाले हैं उनका हज हज हराम है। ये मैं नहीं, ये फिक़ह और उसूल फिक़ह और हदीस की बातें हैं। अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक